Karamat presents gratitude to the hospitality industry. We are providing a platform where experienced leaders share their culinary journey with budding aspirants. A platform where experience meets execution. A platform where we put together collective efforts. A platform with a shared aim, reviving the hospitality industry from the challenges posed by the pandemic. Come, join us on this culinary journey. कुछ शेफ बॉर्न जीनियस होते हैं, कुछ अपनी मेहनत और लगन से जीनियस बनते हैं, पर इन सारे जीनियस में एक बात कॉमन है, ये खाना बड़ा लाजवाब बनाते हैं, जैसे कोई करामात हो इनके हाथों में। जी हाँ, ये करामात ही है शेफ के हाथों में। करामात मास्टर मिक्स फॉर मास्टर शेफ, 100% natural gravies and many more. Welcome to this lovely session, the chat with the entrepreneurs and the renowned stalwarts of the industry. So today we have Mr. AK, Mr. Anurag Katriar from Digustibus Hospitality. So welcome you, sir, to the lovely discussion. Thank you so much. Thank you so much, Chef, for the very generous introduction. My name is Anurag Katriar. He called me AK. So that's okay. That's how people call me. But still, thank you for being so generous. Thank you, sir. And also we have Mr. Mayur Upadhyay, the country marketing head for Karamat Food with us. Thank you so much, sir. And I really thanks to Anurag sir for accepting the invitation. And I am really sure about this. This is going to be a very encouraging session, and hopefully it's a great learning for the industry entrepreneurs. So please, Chef. Thank you. And myself, Chef Vinod. I'm from Indian Culinary Forum, the oldest, or we can say the eldest chef association of India. So looking forward for a wonderful discussion. Likewise, I'm very excited to be sitting with a stalwart like you. Oh my God. Thank you, sir. Anurag ji, first of all, I would just like to understand who Mr. AK is as a person, and so how he has been developed in the industry for last maybe 25 years of his career. So AK is a tourist to this world who descended on this planet 50 years ago and is still traveling. So he doesn't know when he's going away. Oh, wow. And he's somebody who loves to eat, who loves to feed. And that's why God said, okay, zindagi mein sukh sab kuch nahi hota, tum restaurant khol ke dekho. And that is what I do. I'm a restaurateur by profession. I run my restaurants under various brand names. Most prominent of them is, of course, Indigo, which is our flagship. But we have quite a few other brands. And we operate out of Mumbai. We are headquartered in Mumbai, though we have outlets in a few other cities as well. And yeah, that's about me. But this is what I do professionally. At a personal level, I am a very avid reader. I like to read a lot. And, and generally, spending time with people, engaging in some interesting conversations is what keeps me going. It's a way which keeps me active mentally. And yeah, that's in a nutshell what AK is. I think that's a wonderful introduction of yours. और जैसा मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि you love meeting people, and I think food unites and border divides. So जिस प्रोफेशन में हम हैं और जो हम खाना सर्व करते हैं, I think it creates a very well meeting place for many people across the city or the country, we can say. So people unite for food, and we are in that profession. Absolutely. Hospitality is something जो हर एक भारतीय के अंदर खुद बखुद होती है. If you look at one of the things that we always do, if people come to your house, what do you do if somebody visits you? You're not running around for anything else, but यार क्या पिलाऊं, क्या खिलाऊं, ये हमारे अंदर एक basic एक nature होता है. And when I got an opportunity to change that habit into a profession, that was God sent.
you are doing what you want to do, and in the bargain, sometimes you end up making money, and you end up seeing lots of happy faces. Can't be a better combination than that. Wow. I can totally relate to your feelings because being a chef, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मुझे पसंद होता है मैं वो कर रहा हूँ. बिल्कुल. And then it's more of like kind of a passion and more of like emotions that you pass on to your food. आप अगर किसी को अपने खाने की वजह से चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में खुशी देते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है. और हम लोग शायद वो खुशकिस्मत लोग हैं who have an opportunity to do that on a day-to-day basis. So I count my luck on that. I count my stars on that. No, it's wonderful. And sir, you have been associated with this company for almost like I think 2 decades now, and it has grown multi-levels in the last maybe 15-20 years. So this company started in 1996, I believe. Yeah. And you associated in around 2004, I believe. Yeah, so company started in 96, but the first restaurant of the company started in 1999, which was Indigo at Colaba, which was one of the biggest success stories in F&B world in India. In fact, I may go to the extent of saying, at the expense of not remaining modest, that probably it started the culture of fine dining outside 5-star hotels. So that was in 99. I joined towards the end of 2003, early 2004, whatever you say. And at that time, there was one single restaurant, the Indigo. We were still basking in the glory of that one restaurant. Then 2005, we opened the next one, which was Indigo Delhi, which was our more of a casual dining delicatessen brand, which we started in June of 2005. And since then, the journey continues. It's all about dal roti bechi. I can proudly say your first restaurant came after like 5-6 years. The second restaurant came after 5-6 years of the first restaurant, and then it was never looking back. So every year you ended up giving a new outlet to the people across the city and across different cities. More or less. Chef, so I never looked at things like this. We did things at the pace we thought. See, we did not open a second one for a very long time because we thought there is so much more to do with this one. We were not in a race. Those were the days when you were not thinking about a private equity funding and valuation. Yes. You were in the real world of hospitality, and we were enjoying it. We realized that Indigo was an absolute fine diner, and if we wanted to reach to a larger mass, we needed to come up with something which was, a little more acceptable to the larger mass, and that's how Indigo Delhi was born. And seriously, I cannot tell you any trajectory. We have done 4 restaurants in a year, and we have not done 1 restaurant in 3 years as well. We have gone through phases. It is all about opportunities. We never looked at doing restaurants because we had money in the bank or somebody said we should do it. We did it only when we were convinced about the project. And that is why we had what we call a slow rate of growth in comparison to some other people who also were in the trade at that point of time. But I think it's one of the successful brand in the country and serving the best food in its range. So what is the success of your brand? So what is the key mantra, I can ask? Key mantra, I think it's very difficult to say. I think we have been very true to our food. And we have tried, I am a very firm believer that if you have to build a brand, then the brand has to give the similar experience, whether you eat in the morning or in the night, whether you eat in Bombay or Delhi, whether you eat in January or March. And to achieve that consistency, we made sure that most of our production happened in-house. So you'll be surprised in Indigo Delhi, other than probably butter, there is nothing that goes on the table which is not made in-house. We make our own breads like many others do. We make our own preserves. We make our own mustard. We make our own barbecue sauce. We make our own desserts. We make our own ice creams. That gives us a complete control over the product. That's why if you eat a product at Indigo Delhi in Colaba or in Kolkata, you will have similar experiences. So I think that is one of the things. We have not tried to, for example, Indigo Delhi menu has been consistent over the last 15 years. There have been very few changes. We believe that when somebody comes to your restaurant,
दे कम विद एन एक्सपेक्टेशन। मैंने पिछली बार वो खाया था सैंडविच, वो ऐसा था। आज मुझे अगर वही स्वाद मिला तो मैं खुश हूँ। अगर गलत मिला तो मुझे लगा पता नहीं, इट्स अ हिट एंड मिस केस, कभी अच्छा कभी खराब होता है। तो मेरे हिसाब से खाने की दो ही परिभाषा होती है, या तो वो स्वादिष्ट है या स्वादिष्ट नहीं है। और एक बार लोगों ने उसको स्वादिष्ट मान लिया तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट चेंज समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन। ना आई थिंक जो लोग खाना खाने आते हैं, दे हैव देयर सेंसेस एंड देयर विजुअल फील। उनका मतलब जबान पे एक वो स्वाद होता है जिसको वो एक्सपेक्ट करते हैं जब रेस्टोरेंट में आते हैं। सो दे कम फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मुझे ये खाना है और मुझे ऐसा मिलेगा। और अगर वो वैसा मिलता है तो like it's nothing like that. See, if I give you an example outside F&B, take for example whatever toothpaste. Mm-hmm. A Colgate is a big brand because whether you buy it in Mumbai or Chennai, you get the same taste. Yeah, it's about satisfaction is a sum total of expectation minus what you get. So if my expectations are fulfilled, then I'm happy. Yeah, I think in food it's more personal and more senses by looking, feeling and tasting. So it calculates all your senses and give you a best output. Absolutely, absolutely. No, and I think your restaurants are more like giving more innovative food and progressive Indian food, we can say in one way. So that is the need of the customer base at the moment. And I think the attention to detail, as you rightly mentioned in your conversation, कि जो बारीकियां हैं, जो टेस्ट बड्स को जो टच करें, वो चीजें आप अपने फूड में इन्वॉल्व करते हैं, and that's how people come to you again and again. Absolutely. अगर मैंने एक बार एक कोई आइसक्रीम खाई और अगली बार वो आइसक्रीम उससे बेहतर हो या बुरी हो, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक आता है, यार यहाँ पता नहीं हर बार वो सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं। और वो बड़ी जरूरी चीज है, बहुत अहम चीज है। और आप कैसे देखते हैं कि पिछले इतने 16-17 सालों में यू मस्ट हैव फेस सर्टेन चैलेंजेस, कुछ टफ टाइम्स भी रहे होंगे, तो कैसे उनसे आप उभरते हैं और अपने आप को कैसे वापस एनर्जाइज करते हैं? देखिए, परेशानियां अगर नहीं आएंगी तो जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो मैंने जिस दिन से ये बोला, भगवान ने बोला आपकी जिंदगी हम कभी बोरिंग होने नहीं देंगे। तो परेशानियों का एक सैलाब आता रहा। पर देखिए, परेशानियां तो आती रहती हैं। अगर मैं एज अ कंपनी देखूं तो 2008 का वाकया है। हम लोग ये एक बहुत बड़ी जगह ले रखे थे, टोट ऑन द टर्न रेस कोर्स के अंदर, 30,000 स्क्वायर फीट ऑफ इंटीग्रेटेड F&B स्पेस। और हम इसकी फंडिंग एक इक्विटी के थ्रू कर रहे थे। उसी वक्त लेमन ब्रदर्स वाला केस हो गया और वो पैसे नहीं आए। तब तक हमने पैसा कुछ लोगों से ले रखा था कि भैया अब तो पैसे आ चुके हैं, अभी तो कहीं भी नहीं जाना है। अभी हम सोच ही रहे थे इससे उभरे, तब तक इफ यू रिमेंबर 26/11 हैपेंड। जी। और 26/11 जब हुआ तो मेरा जो सबसे बड़ा कैश काउ दोनों था, इंडिगो और इंडिगो दिल्ली कोलाबा, दोनों ही इम्पैक्ट हो गए। तो अब आप सोचिए एक ऐसी स्थिति कि आपके पास एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, आपका कैश फ्लो ड्राई आउट हो गया है, आपके सर पे उधार है और आपको मालूम नहीं अब आगे क्या करना है। पर हमने वी फॉट इट मैनफुली, वी प्लान्ड इट वेल, देयर वाज नो हीरोइज्म, इट वाज ऑल वेरी सेन थिंकिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर एंड पेन थेरेपी। अगर आप परेशानी में तो एक कागज कलम लेके बैठिए और अपनी परेशानियां लिखना शुरू कीजिए और ऑप्शन देखिए, आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो कई बातें आप भूल जाएंगे, जब आप लिखते हैं तो यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। वी केम आउट ऑफ इट, वी डिड नॉट ओपन एनी न्यू रेस्टोरेंट, वी फाउंड सम मनी टू somehow pay our bills, then we found a project which can become the new cash cow, then with that money we retired all the debts, we completed the project and we bounced back again. तो ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। ये आपने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है, बहुत बढ़िया सुझाव दिया है कि अपने परेशानियों को लिखो। सब परेशानियां लिखेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल के आएगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल सजेशन टू हैव। 100%। मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे टेबल पे हर वक्त ये कागज और एक नोटपैड कलम साथ में रहते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ भी है, मैं अगर अभी मेरे जहन में कोई बात आई कि मेरे रेस्टोरेंट में ये हो सकता है क्या, आई विल पुट इट हियर।
फिर मैं बाद में सोचूंगा क्या करना है इसका। नहीं, आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल, एंड वंस यू राइट तो आप वो उसको रजिस्टर कर लेते हैं माइंड में जब आप लिख लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, नाउ यू आर रनिंग अराउंड 8 वर्टिकल्स अंडर योर कंपनी, योर ब्रांड। राइट। सो उन सब ब्रांड्स की अपनी अपनी कुछ खासियत है, अपने अपने कुछ उनके यूनिक यूएसपीज हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में बताइए कि आप अलग अलग वर्टिकल्स कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या उनकी खासियत है। देखिए ऐसा है, मैं इसका थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा आपको। जरूर सर। मेरे हिसाब से आज जिस तरह से इंडियन हॉस्पिटैलिटी कंजम्पशन बदल रहा है, आज हमारे कंज्यूमर्स की चॉइस रोजाना बदलती रहती है। सॉरी एक सेकंड। जी। ऐसे केस में अगर आप एक ही सेगमेंट में लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को रिस्क में डालेंगे। इसलिए आई वांटेड टू हैव माय प्रेजेंस अक्रॉस एवरी सेगमेंट। अगर मैं हर एक चीज को देखूं, इंडिगो इज अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, इंडिगो दिल्ली इज अ प्रीमियम कैजुअल डाइनर। डो जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, जब ये आइडिया आया था तो मेरा आइडिया मालूम है क्या था? इट इज योर नेबरहुड कैफे, जहां पे आप खाना खाते हैं। इन अ वे कॉफी शॉप विच इज नॉट इन अ होटल। जहां कभी भी जाइए, पजामे में जाइए या शॉर्ट्स में जाइए, आपको हर तरह का खाना मिलेगा, ताम झाम नहीं मिलेगा। अगर मैं नील को देखूं तो इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है। होता था तो मैंने उनसे गुजारिश करी, मैंने बोला शेफ एक आपको चैलेंज देता हूँ। जिस दिन किसी बैंक्वेट में मुझे एक गेस्ट ने बोल दिया कि ये बैंक्वेट का खाना तो रेस्टोरेंट जैसा है, मैं आपको एक रेस्टोरेंट खोल के दूंगा। और ये हुआ, और तभी नील का जन्म हुआ। नील वैसे आपको बता दूं, इंडिगो का संस्कृत नाम होता है, जो कलर इंडिगो है उसको नील कहते हैं। अच्छा। इसी तरह से केटरिंग का बिजनेस, बिकॉज मेरे ख्याल से वो एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे चैलेंजेस अलग होते हैं बट उसके बेनिफिट्स भी अलग होते हैं। और देन 2-3 years ago मैंने एक चीज महसूस करी थी कि QSR मार्केट में एक बहुत बड़ी त्रुटि आ गई थी। देयर वाज अ बिग फॉल्ट लाइन व्हिच हैज इमर्ज्ड, दैट इज दैट QSR इज ऑल अबाउट चीप फूड। पीपल फॉरगॉट QSR is about food that can be served quickly but not necessarily served like a factory or served as a substandard level. That's where I saw an opportunity and I started brands like Indigo Burger Project. I started brands like Dakshin Rasoi, जिनका मकसद सिर्फ एक था कि आप QSR में आपको खाना जल्दी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, बिना तामझाम के मिलेगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस भी एक मिलेगा। वरना आप जब खाएंगे तो दोबारा दिल में इच्छा होनी चाहिए, मैं आके ये दोबारा खाना चाहता हूँ या ये ऑर्डर करना चाहता हूँ। बस ऐसे ही जिंदगी चलती रही। एक चीज जो मैंने कंसिस्टेंट अपने कंपनी में रखा, मैं अपने शेफ से अक्सर बोलता हूँ, और कि भैया देखो, इंडिगो नाम के साथ लोगों का एक विश्वास जुड़ा है। उनको ये लगता है कि अगर इंडिगो के स्टेबल से खाना आ रहा है, सो देयर इज गोना बी अ सर्टेन प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी। नेवर लेट दैट गो इन परसूट ऑफ फूड कॉस्ट। यू नो शेफ, आप उससे वाकिफ होंगे फूड कॉस्ट की क्या प्रेशर्स होते हैं। इनफैक्ट मेरे यहाँ पे आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के, मेरे शेफ्स को मैंने कभी नहीं बोला कि यू हैव टू वर्क अंडर दिस फूड कॉस्ट। मैं उनको ये कहता हूँ, आप आर्टिस्ट हैं, आप क्रिएटिव आदमी हैं, आप अपनी काबिलियत के हिसाब से सबसे बेहतरीन चीज बनाइए। अब उसको कैसे और कितने दाम में बेचना है उसकी फिक्र आप ना करें, वो मैं देख लूंगा। और मैं अक्सर एक देता हूँ एग्जाम्पल, दैट इफ समबडी वुड हैव टोल्ड MFSM दैट यू हैव टू क्रिएट अ 8x10 frame, a painting, and you have a budget of 2000, तो घोड़े की पूंछ भी नहीं बनती थी कभी। So you cannot put your creative guys in the role of accountants, and that's something I have maintained all my life. भाई अगर कोई चीज बहुत ही उम्दा बन रही है और उसका दाम उसको 700 रुपए लग रहा है, तो मेरी मर्जी है कि मैं उसको 2000 में बेचूं या 1500 में बेचूं। वो तो एक बिजनेस कॉल है। मैं ये शेफ को नहीं बोल सकता कि मैं ये डिश 600 में बेचना चाहता हूँ तो आप 200 में ही बना कर दो, मैं वो नहीं कर सकता। देन आई एम डूइंग इनजस्टिस टू द शेफ, एंड दैट्स हाउ वी हैव बिल्ट। आई थिंक एक सफर है, चालू है, चलता रहेगा, देखें कब तक चलता है। मायने बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं।
नहीं, आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया बात कही है आपने. एंड बीइंग ए शेफ आई कैन टोटली रिलेट टू दैट. शेफ्स आर आर्टिस्ट एंड दे कुक बाय पैशन एंड दे आर वेरी इमोशनल. सो शेफ्स क्या होते हैं कि बड़े इमोशन से, पैशन से खाना बनाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नंबर गेम, तो जब खाने में जब अकाउंटेंसी आ जाती है तो पूरे सिनेरियो चेंज हो जाते हैं. और एक होता है कि भाई बात है, जैसे आपने आपका सीएफओ खाना नहीं बना सकता. आपका सीएफओ खाना नहीं बना सकता. नहीं बना. शेफ सीएफओ का काम करे. हाँ, ऑफ कोर्स. जी जी. नहीं, जिसका आई काम थिंक ये उसी का बहुत काम एक है. ये बढ़िया आपका जो इनपुट है इसमें. और मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस चीज से कि आप पहले डिश बनाइए, फिर सेलिंग प्राइस बाद में डिसाइड करते हैं, ना कि पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करें, बोले जी आप इस कॉस्ट में खाना बनाइए. नहीं शेफ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ. लोगों को ये समझ में नहीं आती है. आप फूड कॉस्ट को हमेशा परसेंटेज में नहीं नाप सकते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आई एम सेलिंग अ ग्रिल्ड चिकन फॉर 500 रुपीज. एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ मेरा कॉस्ट ऑफ सेल 25% है, तो मेरी मार्जिन कितनी बची? 375 रुपए. नाउ फर्ज कीजिए मेरा एक डिश है जिसकी कीमत मेरा कॉस्ट 800 रुपए, मैं उसको 1500 में बेच रहा हूँ. द परसेंटेज कैन लुक 40-50% प्लस, बट मैं 700 रुपए बना रहा हूँ 375 की जगह. तो विच इज बेटर फॉर मी? ये एक सिंपल सा तो क्यों नहीं समझते, मुझे समझ नहीं आता है. जी जी, ये बारीकियां ही समझने की होती हैं. एंड दैट्स हाउ यू डू द मेन्यू इंजीनियरिंग. And you are successful once you make a equal balance of different dishes. Every dish can't have the same cost percentage. जी जी. अब जैसा सर आप बता रहे थे हाउ टू शेफ्स को जैसे आप गाइड करते हैं and you give a free hand to them. So my other question is, how do you retain your employees during the tough times, ups and downs? Because जो आर्टिस्ट होते हैं वो हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकते हैं. यू कांट रेप्लिकेट देम, सो यू नीड टू रिटेन देम, यू नीड टू मोटिवेट, गाइड. वो सारा कैसे आप हैंडल करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लास्ट 1.5 years? शेफ, मैं आपको एक बार बताऊं, मेरे जो भी थोड़ी बहुत हमने सक्सेस पाई है लाइफ में, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह मालूम है क्या है? मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं वो आमतौर पे नौकरी छोड़ के नहीं जाते हैं. मेरे पास आज भी दर्जन भर से ज्यादा लोग हैं जो 1999 से मेरे पास काम कर रहे हैं. आई हैव पीपल विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 10+ years एटलीस्ट इन डजन. और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप उनको ये महसूस कराएं कि आई एम ट्रीटिंग यू फेयरली. हर कोई, अगर आपने उनको फेयरली ट्रीट किया तो बुरे वक्त में वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. मैं अगर बताऊं, जब ये पैंडेमिक का दौर आया तो ऑब्वियसली ये सबके लिए बड़ा कठिन दौर था, और मैंने कई लोगों को बहुत ही सैलरी काट के दी, पर मैंने छुपा के नहीं दी. मैं इनफैक्ट आई यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियो मैसेजेस एंड सेंड इट टू ऑल स्टाफ कि मैं इस बार तुमको इतनी सैलरी दे रहा हूँ और तुमको बता रहा हूँ कि ये पूरी खर्च मत करो, थोड़ी बचाना, बिकॉज अगले महीने मैं उतना दे पाऊंगा कि नहीं, मुझे ये भी भरोसा नहीं है. आई मेड देम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन rather than a problem. We told them that we are together in this war with the troubled times, and everybody stayed back. Everybody stayed back. Unfortunately, we had to shut down many outlets because of pandemic, because ये एक नई दुनिया है, एक नया एरा है, और उसमें कई चीजें मुझे बंद करनी पड़ी. I had to let go of people. लेकिन मैंने तभी भी एक चीज बिल्कुल निश्चित करी that anybody leaving my company should get his full and final settlement to the last penny within 48 hours of signing on the full and final form. ताकि कल को अगर मुझे उनकी दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं हक से फोन करके बुला लूं. You have to be fair to people. That's the only way. Fair to be fair and give them respect. The moment that happens, nobody starts a day by saying आज मुझे बुरा काम करना है. घर से कोई ऐसा कहकर निकलता है कि आज चलो आज बुरा काम कर रहे हैं. जी जी जी. वो बुरा काम तब करता है जब उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है. आई डोंट हैव अ वैल्यू इन दिस कंपनी. द मोमेंट ही फील्स दैट ही इज वैल्यूड फॉर व्हाट ही डज, ही इज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, ही इज ट्रीटेड विद फेयरनेस, आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स टू शिफ्ट बोट्स. And I think that's one of the reasons why we are able to retain the chef. The man who started Indigo as a chef is still working with us. No, I think that's still working with me 22 years down the line.
जी नहीं, आई थिंक ये बहुत एक बढ़िया बेंचमार्क है टू गिव द फेयर रिस्पेक्ट एंड वैल्यू टू द एम्प्लॉइज। और मेरा मानना है कि देयर आर टू थिंग्स। सॉरी शेफ। जी नो इट्स ओके सर। सुबह तो से दो सिर्फ बोल ही चीजें रहा हैं। देखो, अगर एम्प्लॉय खुश है और एम्प्लॉयर खुश है तो गाड़ी बहुत बढ़िया चलती रहेगी और नॉन स्टॉप चलती रहेगी। एंड दोनों को खुश रखने में इट्स ड्यूटी ऑफ बोथ द पार्टीज, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। अगर सर एम्प्लॉय पार्टनरशिप है। जी मियां बीवी बिल्कुल, को अगर और एक सुखी रिलेशनशिप है दाम्पत्य जीवन चलाना है तो मियां जी, बीवी जी। दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, दोनों को एक बिल्कुल, दूसरे को समझना पड़ता है। हाउ इज इट एनी डिफरेंट इन अ प्रोफेशनल पार्टनरशिप? No, I think and most of the people they spend like I think 1/3 of their life in their working environment. So काफी जिंदगी का जो हिस्सा है प्राइम टाइम वो वर्किंग में चला जाता है। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम दैट यू स्पेंड इन योर वर्क एरिया। You have to do small things to make them feel special. Like, you know, we have a system when somebody completes 10 years or 15 years or 20 years, we call their entire family for a very large event. This happens once in 6 months. तो उस 6 महीने के दरमियान जिन्होंने भी वो माइलस्टोन, बिकॉज आई थिंक हर एक इंसान अपनी तारीफ या अपना एक फेलिसिटेशन अपने सबसे ज्यादा परिवार वालों के साथ देखना चाहता है। जब देखेगा मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे बच्चे मुझे ये इज्जत पाते हुए देख रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी किसको क्या मिल सकती है? You have to think like normal human beings. You don't have to think like MBA all the time. No, and also, sir, getting the family to your workplace, that itself is a proud moment for a employee to bring the family to your workplace and let your family know कि आप कहाँ काम करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, किन लोगों के साथ काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। नहीं, हमारे तो मैं बताऊं, हमारे हर आउटलेट में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होते हैं, so every quarter I hold a lunch with them where I am the host, where I serve them. Okay. And that's only to thank them for what they have done. To be the best amongst the number of employees who are working is a matter of feeling proud, and it's a great moment of pride for me that I can thank them so personally. So छोटे-छोटे gestures, देखिए कोई भी आदमी कोई बहुत लंबी चौड़ी सोच लेके नहीं चलता है, छोटी-छोटी चीजों से ही बड़ी-बड़ी खुशियां बनती है। करेक्ट जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि देखो, सैलरी इज ए गुड मेजर पार्ट ऑफ द मोटिवेशन, बट बिसाइड सैलरी देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कीप द एम्प्लॉय कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। कि पैसा सब कुछ नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए एम्प्लॉय वहां कंटिन्यू करता है। नहीं, 100% शेफ। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से देयर इज अ वेरी गुड शेफ और उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आपको ₹1,00,000 महीना मिलेगा और आपको एक फॉरेन ब्रांड का रेडीमेड प्रोडक्ट रोज बना के देते रहना, मैकडॉनल्ड चलाना। मैं प्लीज डोंट टेक इट, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। नो, आई कैन अंडरस्टैंड। वर्सेस मैं बोलूं कि मैं आपको एक नौकरी दे रहा हूं जहां 80,000 है, बट यू हैव अ चांस टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। टेल मी अ गुड शेफ विल चूज व्हाट? No, I can totally understand your point, and I think money is part of it to run the family. But there are multiple, there are more than money, there are many things that brings the employee to the company. पैसा जरूरतों को पूरा करने के लिए है, इमोशनल जरूरतें पैसे से पूरी नहीं होती। बिल्कुल सर। इज्जत जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। अगर आपको इज्जत आपकी होती है, दैट्स अ ह्यूज मोटिवेटर। अच्छा शेफ, यहाँ मैं एक क्वेश्चन सर से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि देखिए असफलताओं के बीच में ही सफलता छुपी होती है। तो कोई ऐसी 2 असफलताएं, यानी आपकी कुछ ऐसे 2 फेलियर्स मैं जानना चाहता हूं जिससे हम सीख सकें कुछ। क्योंकि सक्सेस तो आपकी बहुत है, लेकिन ऐसी कुछ डिसीजन आपके होंगे जिससे आपको रिग्रेट है। ऐसा कुछ 2 असफलताएं कोई है जो आपको अभी तक चुभ रही हैं? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये असफलताएं तो कई सारी है, कौन सी चुनूं? अच्छा। नहीं, यही सुनना चाहता था। मयूर जी जानना चाहते हैं कि 2 सफल होने के तरीके कैसे बढ़ाऊं। नहीं, देखिए ऐसा है, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, चाहे वो नया कॉन्सेप्ट हो, नया लोकेशन हो, नया रेस्टोरेंट हो, नए लोग हो, उसके अंदर एक रिस्क तो इनहेरेंट होती है। करेक्ट।
कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अब इसको देखने का दो तरीका होता है, अगर नहीं चला तो मैं बंद कर दूं या मैं उनसे कुछ सीख कर उसको ठीक कर सकूं। तो अगर मैं असफलताओं को देखूं तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव रिग्रेटेड, आई हैव नेवर लर्नड हाउ टू रन इज अ नाइट क्लब बिजनेस। ओके। और मैं इसको रिग्रेट नहीं बोलूंगा, बट मैं इसको एक कमजोरी अपनी मानता हूं कि मेरे को वो समझ ही नहीं आता, बिकॉज मैं बोलूंगा कई सारे नाइट क्लब प्लेयर्स आर वेरी बिग प्लेयर्स, मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक नाइट क्लब की यूएसपी क्या हो सकती है। आपकी शराब दूसरे की शराब से अलग नहीं हो सकती, नाइट क्लब में खाने की कोई इज्जत नहीं होती, म्यूजिक आपकी आउटसोर्स होती है। व्हाई डज वन कम टू अ नाइट क्लब? ओके। मैंने आज तक ये नहीं सीखा, और इसलिए शायद मैंने वो एक तबका है जिसको कि बहुत लंबा नहीं खेला। वी डिड हैव अ टोट बार एंड टोट टल्ली, लेकिन दैट इज वन थिंग दैट आई हैव नेवर बीन एबल टू बीट। अगर कई सारी चीजें हैं, मैंने कई साल पहले आई वाज पार्ट ऑफ अ कंपनी जहां हमने एक हेल्थ फूड रेस्टोरेंट किया था जिसका नाम था ट्रिम विद टेस्ट। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट माय आइडिया, समबडी एल्सेस आइडिया, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और मैं रोज जाता था वहां बिकॉज मुझे लगा था कि ये अपने आप में एक बहुत ही उम्दा आइडिया एंड विल हैव अ लॉन्ग लाइफ। इट फेल्ड मिजरेबली। इट हैड वेरी स्टार गेस्ट्स, जो सारे स्टार्स थे वो आते थे, बट उससे दाल रोटी नहीं चलती थी, एंड अल्टीमेटली द ब्रांड हैड टू शट डाउन। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच रैटल्ड मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो फिर हमने बोला भाई देखो, दिल को समझाना सबसे आसान होता है, सबसे एक आसान सा लॉजिक में वी वर अहेड ऑफ द टाइम, और हमने कहा कि खुद को तसल्ली दे ली। पर मैंने एक चीज जरूर सीखा है, एंड इट्स अ कंट्रोवर्शियल लाइन बट आई विल टेल यू। आई थिंक हेल्थ फूड जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये खुद ब खुद एक फ्लॉड है। व्हाट इज हेल्थ फूड इज नोबडी नोज। और मेरा मानना है कि हेल्थ फूड जो है ना, वो एक मेन स्ट्रीम मेन्यू को ऑगमेंट कर सकता है। इट कैन बी एन एडिशनल न्यू फीचर ऑन अ मेन्यू, बट टोटली हेल्थ फूड आई पर्सनली डोंट थिंक इट्स अ रेप्लिकेबल और हाई ग्रोथ मॉडल. It can never become the mainstream in my view, and I'm happy to be proven wrong on this one tomorrow. Who knows, 5 years down the line we'll be talking in a different language, and whatever we talk, whatever decisions we make, remember they are nothing but educated guesswork. They will not succeed every single time. So keep educating yourself and keep guessing. Someday you will hit the right note. Anurag ji, I think you have very well said. मेरा ये मानना है कि हमारा जो रेस्टोरेंट्स में जो कस्टमर बेस होता है, दैट दोस पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ, डिफरेंट बैकग्राउंड, सो हर किसी की नीड हेल्प नीड नहीं होती है, बिकॉज सबकी नीड अलग है. सो वी नीड टू केटर टू एवरीबडी, एंड आई थिंक वन पेज ऑन द रेगुलर मेन्यू विद हेल्दी फूड इज स्टिल ओके, एक्सेप्टेबल, बट नॉट ए कंप्लीट हेल्थ रेस्टोरेंट, because then it becomes kind of a hospital food or maybe kind of a food for sick, we can say. क्योंकि जो healthy लोग हैं, they will eat what they want, and that is good for them. All you know, chef, talking 5 years down, you may a huge success story around this, and I'm very happy with that. To be proven wrong, anything which can add to the heft of F&B industry is always welcome, whether it was my thought or somebody else's. No, I think healthy food is different for different people. Not the same food is healthy for everybody. Correct. बिल्कुल, कोई वीगन खाता है, कोई बोलता है लो कार्ब, कोई बोलता है सिर्फ कार्ब डाइट. जी. Anurag ji, one more thing I want to ask. So you have been president for NRAI. So that is also one of a big responsibility with you, and to manage that along with your regular work and the business pressures. So how do you handle that, and tell us something about NRAI, how does it work, and what are the core activities that you people take under NRAI? So NRAI, as the name is known, National Restaurant Association of India, is nothing but an umbrella body for F&B professionals in India, for food service players in India, and there are other bodies as well. As you know, FHRAI is one. But we believe they are doing a fabulous job vis-a-vis the hotel, and we needed a little more focused group for restaurants. That's how NRAI was born. Yes, I am very proud to be currently serving as a president, and I think it's a matter of responsibility by rotation. कोई भी बंदा लगातार कैसे कर सकता है? तो मेरे पहले राहुल सिंह थे, उसके पहले रियाज अमलानी थे,
जी क्रेजा थे, कई लोग थे, और ये एक क्या बोलिएगा, रोटेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। NRAI का रोल क्या है? टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कैन हेल्प द F&B fraternity. This could range from advocacy to creating knowledge sessions to creating technology help or anything for that matter. और ये सारी चीजें जब आपके पास एक बड़ी परेशानी होती है तो और उभर के ज्यादा आती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब लॉग आउट मूवमेंट हुआ, या उसके पहले जब हाईवे लिकर बैन हुआ, या फिर आजकल जो चल रहा है पैंडेमिक, इसकी तो बात क्या करें। ये तो नहीं, I think NRAI has played a vital role during all these times, like liquor ban especially, and during this COVID. I think these associations plays a very vital role in uniting the fellow professionals and the fellow business partners. Since like I'm also associated with the Indian Culinary Forum, which is the chef association. So the whole motive is to develop the chefs, nurture the younger ones, and share the knowledge and bring them to a good platform. भाई देखिए, किसी न किसी को तो इंडस्ट्री की वॉइस बनना ही पड़ेगा, वरना आप इतने फ्रैगमेंटेड हैं। अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं बहुत बड़ी है, टाटा स्टील का प्लांट है, तो वो अपने आप में एक यूनिट होता है। लेकिन यहाँ तो छोटे बड़े रेस्टोरेंट हर गली कूचे कोने में होते हैं, उनको यूनाइट करने के लिए एक वॉइस चाहिए। और ये तो कोई अर्थ ही नहीं है कहने का कि एक साथ रहने की अहमियत क्या होती है। साथ रहने से कई सारी चीजें होती हैं। आज अगर आप जैसे मुझे कह रहे हैं कि NRAI ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, ये तभी मुमकिन हो पाया when the entire fraternity was standing behind us, no? तो इसीलिए हम एक कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट की जो परेशानियां हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अपने मेंबर्स के साथ शेयर करें और उसके लिए जो भी काम करना वो करें। यही हमारा रोल है। I think togetherness is the key to success. Absolutely. And sir, one final question. So during this lockdown, so you have done a lot of adaptations. So what were the adaptation in terms of sourcing of ingredients and getting all the ingredients at one place during the pandemic lockdown? So you must be running the takeaway model and other options during this lockdown period. So you'll be very surprised that after the first unlock, I did not open any of my restaurants. Okay. Because there were still restrictions in travel and I did not want to risk the lives of my people for a little money. I thought that was unfair. Only when, towards as that term ended, we learned a lot more about pandemic and how to prevent it. And देखिए तो बहुत ही सरल सी चीज है, wear your mask, keep sanitizing yourself and maintain social distance. And now vaccinate yourself as you get a chance. So हमने बहुत बाद में शुरू किया। देखिए मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप एज अ रेस्टोरेंटियर एक बात को मान के चलिए, दैट pre-COVID times and post-COVID times are two different eras altogether. Don't make the mistake of comparing the two. You retool your business to the reality. अगर आप ये सोचोगे कि पहले मेरा व्यापार महीने का 1 करोड़ का था और मैं उसके लिहाज से ही आज भी खर्चे लेके चलूं, तो you are living in a la-la land. Okay? You have to understand if the new reality says that I will not do more than 50 lakhs a month, then you have to retool your business to see how can you be profitable with that 50 lakhs of sales. That can happen by cutting down your costs. So if you were in a 5,000 square feet, move to 2,000 square feet for all I care. Renegotiate the rent, convert it into revenue share model, cut down on the number of people, maybe cut down on the number of menu items. But आपको ये सच्चाई मान के ही चलनी पड़ेगी जो आज के युग की सच्चाई है। अगर आप उससे परे रहोगे जो बिजनेस है वो अकेला एक सेगमेंट है जो कि थोड़ा इंसुलेटेड है अगेंस्ट पैंडेमिक एंड लॉकडाउन. So I think that is something which everybody should look at. This is a habit change that has happened thanks to the pandemic. Accept it. Now what you need to do is make sure that you are working in a model which is profitable in the delivery business. This is the time when I believe every restaurateur should go low risk asset light model. This is the time. Hold your horses.
अगर आप जिंदा रहेंगे तो कल जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आप दोबारा बढ़ सकते हैं। अगर आज आप अपने खर्चों के बोझ के तले मर गए तो कल को बाजार कुछ भी हो जाए आप उबर नहीं पाएंगे। And this is something that I keep telling people. Adapt to the new reality and before that accept the new reality. I think ये जो हम कभी कभी इसमें रहते हैं ना, अरे कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, I've read an article, अक्टूबर से सब ठीक हो जाएगा। फिर ठीक हो जाएगा तब आप बढ़ा लीजिए। आज से आप उस बोझे में क्यों जी रहे हैं? आपकी आज की जो रियलिटी है उसके लिहाज से अपने बिजनेस मॉडल को ट्वीक कीजिए। नहीं, आई थिंक ये जो लॉकडाउन में काफी जो प्रिडिक्शंस जो थी, आई थिंक एवरी प्रिडिक्शन हैज गॉन रॉन्ग एंड वी हैव टू लिव द लाइफ ऑन द डे। हम आगे का फ्यूचर प्रिडिक्शन फॉलो नहीं कर सकते हैं और हमें पूरा मतलब रियलिटी के साथ चलना है और न्यू नॉर्मल को फॉलो करना है। एज यू राइटली सेड कि हम वापस से ये नहीं सोच सकते कि अक्टूबर में सब ठीक हो गया या दिसंबर में सब ठीक हो गया। यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन टुडेस टाइम। सर, इस वायरस की फितरत से कोई भी वाकिफ नहीं है। कब कौन से तरीके से वापस आएगा कोई नहीं जानता है। आज डेल्टा है, कल खाड़ी होगी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। You never know. And I think it's an unknown territory even for the people, those who are treating it. I think everybody is in an unknown territory and nobody knows what is the final outcome of it. बिल्कुल। So इसीलिए आज की जो सच्चाई है उसके मुताबिक खुद के बिजनेस को रीमॉडल कीजिए और इसको ये मत सोचिए कि now have become small. You must think this is the reality and I can live with this. And adaptability is the need of the hour. बिल्कुल सर, अगर आपने खुद को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढाला तो आप शेप से बाहर हो जाओगे। जी जी जी, परिस्थिति आपको बाहर कर देगी। नहीं, एक बहुत बढ़िया आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हमारे साथ और आई थिंक व्यूअर्स विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू द फैक्ट्स। और आपने सीधी दिल से बात की है सारी और इसमें मुझे लगता है ये बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आपने बताया कि भाई ये सच्चाई है। मानो तो आप नदियां पार कर लोगे, ना मानो तो डूबने का पूरा खतरा है। सर, अब देखिए, पढ़ाई लिखाई तो हमने की, तो तजुर्बे की बात कर सकते हैं, वही कर दी है। करता हूँ आपके व्यूअर्स इसका शायद कुछ लाभ उठा पाए या कम से कम इसको सुनना पसंद करें, क्योंकि आज का युग थोड़ा अलग युग है। पर मैंने हमेशा माना है कि आंखें खोलकर देखो तो सच्चाई दिखेगी। अगर आंखें मूंद के सोचते रहोगे तो वो सिर्फ सपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं तो कहता हूँ कि समझदार वो है जो दूसरों के तजुर्बे से सीखता है। गलती करके तो हर कोई सीख लेता है। नहीं, कई तो ऐसे भी होते हैं जो गलती करके भी नहीं सीखते। जी, वैसे भी बहुत हैं, बट समझदार वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सबक ले लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी, I think it was a wonderful discussion and a wonderful chat with you, sir. Mayur ji, you want to ask something? The final question. थैंक यू सो मच अनुराग सर। और हम चाहते हैं कि आपकी ये जो प्रकार नॉलेज शेयरिंग है हम आपसे रेगुलर लेते रहें, आपसे जुड़े रहेंगे। और आज के जो सेशन में जो इंसाइट मिली है या जो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा है काफ़ी चीज़ों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आशा करता हूँ आपके व्यूअर्स को हमारे विचार सुनने लायक लगेंगे। मानने लायक लगे तो बड़ी अच्छी बात है, सुनने लायक लगने चाहिए। ठीक है जी जी जी। और यस, एनीथिंग दैट कैन हेल्प द यंगस्टर्स इन द प्रोफेशन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू देम। Thank you so very much for having me. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much, Anurag ji. Very nice session, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mayur ji. Thank you, sir. Thank you, chef. Thank you.